کیا غزہ آزاد ہوگا نہیں ہوگا, کیا فلسطین یا 2 اسٹیٹ سولوشن بنے گا نہیں بنے گا, کیا وہاں پہ لوگوں کو سکون ملے گا نہیں ملے گا. ریسرچ کریں, ہسٹری میں سرچ کریں, کسی سے پوچھیں, آپ کو پتا چلے گا کیا ہوتا رہا ہے پچھلے 1400-1600 ایئرز میں بنی اسرائیل کے ساتھ. ہمارے پاس ابھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ کل کو جو ہے نا یہ ظلم اور زیادتیاں ختم ہو جائیں گی. نہیں, بنی اسرائیل کو اللہ نے موقع دیا ہے, بال ان کے کورٹ میں, ان کے ہاتھ میں ہے, وہ اپنی چیزوں کو اسٹیبلش کریں گے. عسى ربكم ان يرحمكم, امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگو گے تو ہم دوبارہ ایسا ہی کریں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا, اور ہم نے بنایا ہے جہنم کو کافرین کے لیے ایک قید خانہ. جی ہاں بھائی, کنکلوژن جو ہے اس میں ہو رہا ہے ان سارے ایونٹس کا جو شروع سے آیت نمبر 2 سے بندی ہوئی آ رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہم نے اب ایک پرنسپل بنا دیا تمہارے لیے, جی. اصول بنا دیا. یہ اصول کیا ہے کہ اگر تم نے پھر وہی کیا ہم پھر وہی کریں گے. تم ادنا, اللہ کہہ رہے کہ ان قریب امید ہے کہ ہم تم پر رحم کریں. یرحمکم مضارع ہے, پریزنٹ ٹینس ہے, ٹھیک ہے, کرتا ہے, اور ہم اس کو عربی میں مضارع کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں جملے کے حساب سے فیوچر ٹینس میں بھی. یرحمکم کرتا ہے یا کرے گا, دونوں صورتوں میں اللہ کرتا بھی ہے اور کرے گا بھی, اور کرتا رہا ہے ان کے اوپر رحم. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں, میں تمہیں پرنسپل بتا رہا ہوں. پرنسپل کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم پرنسپل بتا. پرنسپل کیا ہے, اصول کیا ہے؟ اصول ہے تم ادنا, تم وہی کرو گے جو تم نے کیا, ہم وہی کریں گے جو تم نے کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا, اوپر دو چیزوں کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ یہ تم کر چکے تھے. قرآن آیا 1400 ایئرز اگو, 620 630 640 AD میں, آفٹر دی ڈیتھ آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس سے پہلے یہ دونوں چیزیں ہو چکی تھیں. ڈیتھ کب ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, وہ ہوئی ہے, اور یہ جو ٹیمپل جو سیکنڈ ٹائم ڈسٹروائے ہوا ہے, ختم ہوا ہے, مسجد جو سیکنڈ ٹائم ختم ہوئی, وہ کب ہوئی ہے 70 AD, یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے اباؤٹ 70 ایئرس. ٹھیک ہے, تو تقریباً 500-600 سال کے بعد قرآن آ رہا ہے, اور کیا لے کر آ رہا ہے, یہ فارمولا لے کر آ رہا ہے ان کے لیے, اور تم یہی کرو گے ہم وہی کریں گے. پہلے آپ سوچیں, پہلا کب آیا, پہلا جو ان کا ہوا تھا ڈسٹروائے وہ کب ہوا تھا؟ ایکسیلنٹ ہسٹری ہے قرآن کی, آپ دیکھیے 600 of BC, یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 600 سال پہلے, تقریباً 100% نہیں. آپ یہ کہہ رہے 581 تھا, نہیں جی 602 تھا. ہسٹری ہے, مجھے بھی ایگزیکٹلی 100% نمبر نہیں پتا ہے, بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ اٹ اپروکسیمیٹلی. ٹھیک ہے, 2-3 ہزار سال نہیں ہے, بلکہ یہ ہم ایک بات کریں گے 600 سال پہلے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسرا ہوا, کب ہوا 70 AD, یعنی کہ ایگزیکٹلی ان دو قصوں کے درمیان کتنا ٹائم آ رہا ہے, 500 سے 600 سال. جب اللہ ان کو یہ فارمولا دے رہا ہے تم ادنا, کتنا ٹائم ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عرصے کے بعد آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, 500 سے 600 سال بعد. ایگزیکٹلی 500 to 600 ایئرز اگین آفٹر اللہ نے ان کو یہ فارمولا دے دیا, تم ادنا, تم وہی کرو گے ہم وہی کریں گے. اب ریپیٹڈلی میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں, آپ لوگ خود دیکھیں, ریسرچ کریں, ہسٹری میں سرچ کریں, کسی سے پوچھیں, آپ کو پتا چلے گا کیا ہوتا رہا ہے پچھلے 1400-1600 ایئرز میں بنی اسرائیل کے ساتھ. ایک جگہ گئے, سیٹل ہوئے, پرابلم ہوئی, نکالے گئے. دوسری جگہ گئے, سیٹل ہوئے, پرابلم ہوئی, نکالے گئے. تیسری جگہ گئے, سیٹل ہوئے, پرابلم ہوئی, نکالے گئے. سٹوری آفٹر سٹوری آفٹر سٹوری. یہ فارمولا اللہ نے دے دیا نا ان کو, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں یار, آپ خود سوچو. اچھا, اب جو آج کل ہو رہا ہے ایگزیکٹلی فلسطین ہے, نہیں تو نہیں ہے, نہیں تو غزہ ہے, نہیں تو کیا کہتے ہیں اپنے پیس ڈیل ہے, ابراہیمک اکارڈ ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, put it all together in that sense. تم ادنا,
अल्लाह ने इनके हाथ में दे दिया. अल्लाह ने कहा यार तुम लोग जो है ना, तुम दुआ बड़ी अच्छी करते हो, तुम लोग एक जो है ना उस पे आते हो, फिर तो मैं तुमको फिर माफ कर देता हूं. जैसे अल्लाह ने ऊपर बताया कि दो दफा क्या हुआ, आसन तुम अच्छा करते हो, अपने लिए अच्छा करते हो, तो अच्छा तो करते हैं ना ये, फिर क्या होता है, फिर तुम रविश से हट जाते हो. तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस पूरे सिनारियो को देखिए, अभी जो कुछ हो रहा है कि अच्छा करेंगे अपने लिए करेंगे, बुरा करेंगे अपने लिए करेंगे, उत्तम उदना, तुम वही करोगे हम वही करेंगे, आसन तुम उत्तम उदना, तुम वही करोगे हम वही करेंगे, आसन तुम अच्छा करोगे अपने लिए करोगे. तो अब जो कुछ हो रहा है उसमें क्या सिनारियो है कि अगर ये इनके हाथ में, गेम इनके हाथ में, बॉल इनके कोर्ट में है, अच्छा करेंगे अपने लिए करेंगे, बुरा करेंगे अपने लिए करेंगे. हिस्ट्री क्या दिखा रही है हमें कि एक जगह जाते हैं सेटल होते हैं निकाले जाते हैं, एक जगह जाते हैं सेटल होते हैं निकाले जाते हैं. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको चांस दिया हुआ है. अभी ये जिस तरफ जा रही है पूरी स्टोरी, उसमें क्या होगा, उसका एंड रिजल्ट आप खुद कैलकुलेट करें, आप खुद कैलकुलेट करें इसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको चांस दिया हुआ, अगर ये बुरा करेंगे तो क्या होगा, बुरे होगा. लेकिन अभी राइट अवे क्या होगा, राइट अवे वही होगा कि ये सिलसिला आगे चलता रहेगा. ठीक है ना. और हमारे पास अभी कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि कल को जो है ना ये जुल्म और ज़्यादतियां खत्म हो जाएंगी. नहीं, गजा होगा या फलस्तीन होगा या कुछ भी होगा, उस पे हुकूमत बनेगी, हुकूमत होगी, हुकूमत करेंगे. बनी इसराइल को अल्लाह ने मौका दिया है, बॉल उनके कोर्ट में, उनके हाथ में है, वो अपनी चीज़ों को इस्टेब्लिश करेंगे. और अगर वो गलत करेंगे तो अल्लाह फिर उनके साथ वही करेगा जो उसने उनके साथ पहले किया है. ये जो है ना ये बड़ी ही अमेजिंग और जो है ना वो बात है. अच्छा, अब इस बात में बहुत सारे लोग सवाल ये कि क्या गजा आज़ाद होगा नहीं होगा, क्या फ़लस्तीन या 2 स्टेट सोल्यूशन बनेगा नहीं बनेगा, क्या वहाँ पे लोगों को सुकून मिलेगा नहीं मिलेगा. अच्छा, जो अच्छे लोग हैं वो दोनों तरफ हैं, उधर भी हैं इधर भी हैं, उधर भी हैं, बनी इसराइल में भी हैं अच्छे लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ने कहा है कि जो तुम में से जो अच्छे हैं उनकी जजा, उनका जो रिटर्न है, उनका जो क्या कहते हैं आप, रिवॉर्ड है, वो अल्लाह के पास है. सूरह बकरा में अल्लाह ने कहा है, साफ कहा है. तो अभी जो कुछ भी होगा उसमें आप देखिएगा कि मिडल ईस्ट इज गोना बी अ वेरी की पॉइंट, और मिडल ईस्ट में बहुत प्रोग्रेस भी होगी, क्योंकि ये अभी उस लेवल पे नहीं आए. उस लेवल पे क्यों नहीं आए, उसकी वजह कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इनकी दो मेजर चीजें जिसके बाद इनके ऊपर अज़ाब आता है. उसमें से एक क्या है कि ये अल्लाह की निशानियों को झुटलाते हैं, नहीं मानते हैं, तंग करते हैं. और दूसरी क्या है कि नबियों को कत्ल करते हैं. नबी तो भी कोई है नहीं, नबी तो भी कोई है नहीं, तो वो सिचुएशन तो है नहीं. तो क्या होगा, उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इससे आगे वाली आयत में इशारा दिया, वो समझने की जरूरत है. लेकिन समराइज करने के लिए अभी जो आपकी जो सिचुएशन है मिडल ईस्ट की, वो ऐसे ही चलेगी. और जो है मुसलमानों को कोई बहुत जल्दी कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है वहाँ से, बल्कि हकीकतन लगता है ऐसे कि वहाँ पे इनकी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होने वाली है या होगी, और एक अच्छी बड़ी गवर्नमेंट होगी, हुकूमत होगी, जहाँ पे ये सब करेंगे. और उनके नेबर्स जो हैं, इर्द गिर्द के जो कंट्रीज़ हैं, वो इनके साथ मिलकर चलेंगी. उसकी वजह यह है कि वो इतनी बड़ी इकॉनमी होगी, उस इकॉनमी के अंदर सबको खाना है, सबको काम करना है. तो अगर एक फैक्ट्री ऑनर है जो फ़लस्तीन से या इसराइल से है, तो उसको अपनी प्रोडक्ट क्रिएट करने के बाद उस प्रोडक्ट को सेल भी करना है, तो उसकी इर्द गिर्द की मार्केट चाहिए, और उस प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए वर्कर्स भी चाहिए, तो वो भी इर्द गिर्द की मार्केट चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो इतनी बड़ी आबादी है नहीं. तो इट इज़ गना बी फॉर अ शॉर्ट टाइम, इट्स गना बी अ गुड हार्मोनी थिंग दैट्स गना हैपन, बिकॉज कि अभी इस तरह की कोई और चीज़ नज़र नहीं आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रही है कि जिससे ये लग सके कि राइट अवे जो है ना, को अल्लाह का इशारा भी इस वक्त इस तरह का समझ नहीं आ रहा है. मुसलमानों की हालत अगर आप इन दैट सेंस देखें, तो जो ये लोग कर रहे थे ना फर्स्ट टेंपल के टाइम पे, मुसलमान एग्जैक्टली वही कर रहे हैं
जो सेकंड टेम्पल के टाइम पे इन्होंने किया, हम कम से कम उतना उस पे नहीं है, बट लेकिन जो डिविजन्स थी, जो गालम गलोच थी, जो फिरकावारियत थी, जो अल्लाह किताब से दूरी थी, जो एक एक रिवायत को पकड़ के और दूसरे के जो है ना वो गले के ऊपर फेंकने वाली बात थी, वो ये करते थे ना, वो यही कर रहे थे ना, किताब से दूरी थी। अल्लाह ने शुरू कहां से किया? वो आतईना मूसल किताबा, कहां से शुरू किया? हमने मूसा को किताब दी, किस लिए? ताकि वो इससे हिदायत पाए। ये नहीं कहा हमने मूसा को रिवायात दे दी, हमने मूसा को एक स्टोरी नहीं, अल्लाह की किताब है, उस किताब से दूर हुए, ये सब कुछ। आज आप जहां खड़े हैं उसकी वजह 99.99999% इस किताब से दूरी है। वो एक ही लफ्ज़ मेरे जहन में बार बार घूम रहा जो आज के हमारे हालात को जो है बता सकता है, वही तुम उदना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, अच्छा करोगे खुद के लिए करोगे, बुरा करोगे तो पलट के तुम्हारे पास ही आने वाला है। इन कौमों को तुम्हारे लिए मिसाल बनाकर अल्लाह ने पेश किया, अगर तुम वैसा ही करोगे अमल तो फिर तुम रेडी रहोगे, तुम्हारे पास बला मुसीबत सारा कुछ आने वाला है जैसा उनके पास आया था। एग्जैक्टली कुरान सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब लेकिन सबसे कम समझे जाने वाली किताब, ये हमारा अलमिया है। तो अजीज साथियों, आज के इस एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हिस्ट्री बयान की बनी इसराइल की, कैसे उनका डाउनफॉल आया, वो जो सारा कुछ अल्लाह ने तफसील से जो है बताया है। इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसमें बड़ी राज की चीज़ हम जानने वाले हैं कि इसका कंक्लूजन क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आगे इनके लिए जो है क्या होने वाला है। अगर आप इसके जानने के लिए शौकीन है और जो है जस्तजू में है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।